welcome back to Vivek Academy. So in this lecture we will learn remainder theorem. In previous lecture we have learned introduction to polynomials, zeros of polynomials. If you haven't watched that video, link is in the description. So ये आपको पता है when we divide an integer with another integer, तो उसका remainder क्या होगा? Either 0 या फिर less than the division, right? Let's consider two numbers 15 and 6. If I divide 15 by 6, what I will get? I will get 2 is quotient. हमें 2 quotient मिलेगा और 3 remainder. How? Let's solve this. When 15 divided by 6, I will get this. Where 3 is remainder, 6 is divisor, 2 is quotient and 15 is dividend. So this can be expressed as dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So you can observe that the remainder 3 is less than this division, right? Here 3 is remainder which is less than the division. मैंने बोला था remainder 0 होता है या फिर less than the division, right? Now let's consider another numbers 12 and 6. So when 12 divided by 6, what will we get? We get remainder 0. This can be expressed as 12 equal to 6 into 2 plus 0, where 0 is the remainder, right? So in this we can say that 6 is the factor of 12 or 12 is the multiple of 6. जब remainder 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं? This 6 will be the factor of 12 and 12 is the multiple of 6. So this similar pattern followed by the polynomial. जब एक polynomial दूसरे polynomial से divide होता है तो उसका remainder या 0 आता है या फिर less than the division. Let's say f of x be a polynomial divided by g of x. जब एक polynomial दूसरे polynomial से divide होगा तो उसका remainder 0 होगा या फिर less than the division. But it follows the fact that when in polynomial f of x divided by linear polynomial g of x, तो उसका रिमाइंडर 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा, और 0 भी तो कांस्टेंट है. तो जब एक पॉलिनोमियल f of x डिवाइड होगा लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसकी डिग्री 1, तो जब पॉलिनोमियल डिवाइड होगा लीनियर पॉलिनोमियल से तो उसकी जो रिमाइंडर है वो 0 होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा. So now let's see an example on the basis of this. So now let's see this example. So what it say? Divide p of x by g of x, where p of x is 3x square plus x minus 1 and g of x is x plus 1. Here g of x is a linear polynomial. और हमने ये देखा कि जब linear polynomial से divide होगा कोई भी polynomial तो उसका remainder 0 आना चाहिए या फिर constant, right? So let's see. 3x square plus x minus 1 when divided by x plus 1, where x plus 1 is a divisor. 3x square plus x minus 1 is dividend, right? So यहाँ पे 3x square है, यहाँ पे x plus 1 है. मुझे 3x square हटाना है, right? x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो मतलब यहाँ पे मुझे 3x square चाहिए. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3x से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3x से x plus 1 को, तो मुझे क्या मिलता है? 3x into x, 3x square, 3x into 1, 3x, right? मतलब मेरा ये पहला टर्म हट रहा है यहाँ से, तो x plus 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3x से. हमेशा याद रखना जो यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, राइट, उससे एक छोटा एक्सपोनेंट का लेना, एक छोटा डिग्री ले लेना. यहाँ पे 2 था, 2 से छोटा डिग्री 1, तभी तो जाके 1 plus 1 जाके हमारा 2 होगा. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर या फिर एक्सपोनेंट हमारे ऐड होते हैं. यहाँ पे 1 जाके हो तो क्या हो जाएगा वो 2.
तो इधर क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब हमेशा याद रखना साइन चेंज होती है, यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये साइन को देखना, 3x उल्टी साइन इधर क्या है प्लस, उसकी उल्टी साइन माइनस, इसकी साइन यहाँ पे क्या है प्लस, उसका उल्टा साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट 0, प्लस माइनस माइनस 3x माइनस x, कोएफिशिएंट क्या है 3, कोएफिशिएंट क्या 1, 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 2x, ग्रेटर नंबर इज 3x तो उसकी साइन क्या होगी माइनस। अब मुझे माइनस 2x हटाना है तो कोएफिशिएंट क्या है 2, मतलब यहाँ पे 2 तो आएगा ही, और इससे छोटी डिग्री क्या हो जाएगी, छोटी डिग्री यहाँ पे x की डिग्री 1 है, इसका छोटा एक छोटा डिग्री क्या हो जाएगा x⁻0। तो मुझे पता ही है एक ये कोएफिशिएंट तो आ गई तभी तो टर्म हटेगी, तो x⁻0 क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 तो क्या आएगा हमारा 2, यहाँ पे 2, लेकिन साइन मैटर करती है, यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस 2x आया, अगर प्लस 2x आया तो साइन चेंज होगी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो बढ़ जाएगा ना, -4x आएगा, ये तो बढ़ते जाएगा, मुझे हटाना है तो मैं इसको -2x से मल्टीप्लाई करूँ, बराबर -2 से मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मुझे -2x मिलेगा, -2x मिलेगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, प्लस माइनस माइनस पहली टर्म हटेगी, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी -2 से, तो मैं -2 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा -2x -2, ये -1 यहाँ पर ये नीचे ले लो, क्या मिला -2x -2 प्लस प्लस साइन चेंज हुई, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2 minus 1 is 1, so remainder is 1. So this can be expressed as p of x equal to g of x into q of x plus r of x, where p of x is the dividend, g of x is divisor, q of x is the quotient and r of x is the remainder. So p of x हमारा क्या है, so 3x square plus x minus 1 equal to x plus 1 into the quotient, quotient क्या हमारा 3x minus 2 plus remainder is 1. Now let's see the link between the remainder and the certain value of the dividend. तो you know हम लीनियर पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, x plus 1 equal to 0, तो x क्या आ गया -1, replace x equal to -1 in this पॉलिनोमियल या फिर डिविडेंड में, so p of -1 क्या हो जाएगा 3 of -1 स्क्वायर प्लस x क्या हो जाएगा -1 और ये -1, so p of -1 क्या हो गया 3, 1 स्क्वायर इज 1, 3 into 1 is 3 प्लस माइनस -1, so p of -1 क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस -2, so p of -1 क्या हो गया 1, यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ पे भी क्या आया p of -1 1, तो देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो सेम आई एज द रिमाइंडर, राइट। अब इतना सारा रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इतना बड़ा डिवीजन मेथड, ये इतना सारा, ये इतना बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। सो वी कैन जनरलाइज दिस इन द फॉर्म ऑफ ए थियरम एंड दैट थियरम कॉल्ड एज रिमाइंडर थियरम. Now let's see what the remainder theorem is. Now let's see the remainder theorem. So let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number. If p of x is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a. Right? तो क्या बोला है, p of x कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर या फिर इक्वल टू 1 है, 1 से ज्यादा या फिर 1 है, और a कोई भी रियल नंबर है. अगर उस पॉलिनोमियल को p ऑफ x को डिवाइड किया हमने x माइनस a से, तो उसका रिमाइंडर जो भी आए वो किसके इक्वल हो, p ऑफ a की, राइट. और यू नो लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a वो इक्वल होता है 0 से, तो इधर x क्या हो गया a, राइट. तो इसलिए यहाँ पे p ऑफ x की जगह क्या है p ऑफ a, y s किससे रिप्लेस हो गया a से, ठीक है, वो हम लिखेंगे.
तो हमें बोला है कि पी ऑफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 रहे, जब पी ऑफ एक्स डिवाइड हो एक्स माइनस ए पे तो उसकी रिमाइंडर किसके इक्वल होनी चाहिए, पी ऑफ ए। तो लेट क्यू ऑफ एक्स बी क्वोशिएंट and r of x be remainder when p of x is divided by x minus a। ठीक है, तो r of x क्या हो जाएगा, 0। r of x क्या रिमाइंडर, r of x 0 हो जाएगा या फिर लेस देन दी डिविजन। मैंने क्योंकि बोला था रिमाइंडर या फिर 0 होता है लेस देन दी डिविजन, और यहाँ पे डिविजन क्या है, यहाँ पे डिवीजन है x माइनस ए, फिर उसकी जो डिग्री है कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। तो 1 से छोटी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो r ऑफ x 0 हो सकता है या फिर कांस्टेंट होता है, हो सकता है, राइट। तो लेट r ऑफ x इक्वल टू r ऑफ x इक्वल टू r, तो देन p ऑफ x इक्वल टू g of x into q of x plus r of x, where g of x is what, division। तो यहाँ पे डिवीजन क्या है, x माइनस ए, और क्वोशिएंट क्या है, q of x प्लस रिमाइंडर क्या है, r of x। रिप्लेस कर दो r of x को हम r से, क्योंकि हमने r of x को क्या लिया था, r। सो p of x इक्वल टू x माइनस ए q of x प्लस r। ठीक है, नाउ मैंने बताया था x माइनस ए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेट किया 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a। रिप्लेस x इक्वल टू a इन दिस पॉलिनोमियल, सो p ऑफ a क्या हो जाएगा, a माइनस a q ऑफ a प्लस r। सो a माइनस a इज 0, 0 इंटू q ऑफ a 0, तो p ऑफ a कितना हो गया, P of A हो गया R, और यही हमें प्रूफ करना था। दिस शो द रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो देन इधर क्या बोला था, रिमाइंडर क्या आना चाहिए उसका, P of A। तो इधर रिमाइंडर आ गया हमारा P of A। सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x is to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 divided by x minus 1। We have to find the remainder by this remainder theorem, long division method से नहीं, remainder theorem से हम करेंगे। So let p of x be x plus to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 and 0 of x plus 1 कितना हो जाएगा, सॉरी x minus 1 क्या हो जाएगा, 1। कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो 0 ऑफ x माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो रिप्लेस x इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनोमियल, so p of 1 raised to 4 plus 1 raised to cube minus 2 raised to 1, sorry 2 into 1 raised to square plus 1 plus 1, so p of 1 कितना हो गया, 1 raised to 4 is 1, 1 raised to cube is 1, 1 square is 1 into 2 minus 2 plus 1 plus 1, so p of 1 कितना हो गया, 1 1 1 plus 1 2, so 2 minus 2 plus 1 plus 1, cancel, p of 1 कितना हो गया हमारा 2। so this is the remainder of this polynomial, 2 is the remainder of p of x। Now let's see another question. Now let's see this question. Check whether the polynomial q of t equal to 40 cube plus 40 square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। अब qt मल्टीपल 2t plus 1 का तब होगा तब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, तब जाके 2t plus 1 इसका फैक्टर होगा और ये इसका मल्टीपल होगा, राइट। सो हमें क्या है, गिवन qt दिया गया है 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2t plus 1 इक्वल टू 0, तो हमारा क्या आ जाएगा,
t की वैल्यू 2t equal to -1, t equal to -1/2. So we have to replace t equal to 1 -1/2 in this q of t. So q of -1/2. So 4 -1/2q plus 4 -1/2 square minus of -1/2 -1. So q of -1/2 क्या हो जाएगा? -1/2 का क्यूब. अब माइनस इंटू माइनस प्लस, हमें इसका क्यूब निकालना है, राइट. माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन क्या लगेगी? माइनस. सो 4 इंटू 1 का क्यूब 1, साइन इधर माइनस, और 2 का क्यूब 8 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1/4. माइनस माइनस प्लस 1/2 -1. तो क्यूब ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 2 are 8. सो -1/2 4 4 कैंसिल, प्लस 1 प्लस 1/2 -1, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल. सो क्यू ऑफ -1/2 कितना हो गया? 0. राइट. अब ये 0 आ गया हमारा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं? q of t is a multiple of 2t plus 1. So we can say that 2t plus 1 is a factor of q of t, or q of t is multiple of 2t plus 1. So in this lecture we have seen this remainder theorem. We will see factor theorem in next lecture.